Good morning, बाळाको. Today we again discuss about continuity of some function. Okay. In previous lecture, we take some illustration, means example. Okay. We now continue. Illustration number 11. Find all points of discontinuity of the function f is defined by f of x equal to x plus 2 if x less than 1, and if x equal to 1 then function is x at 0, and if x is greater than 1 then function is x minus 2. Here we discuss about discontinuity. We have to show that function at which point function is discontinuous. Here function is defined at point x equal to 1. Then here first we have to check continuity at x equal to 1. See here, if x less than 1 then function is unique, that is x plus 2, then function is always continuous for x less than 1. And if x greater than 1 then same function is x minus 2, which is unique. And if fx equal to x minus 2 then function is always continuous for x greater than 1. Then here we have to check only for x equal to 1. Then first for x equal to 1, first we find left hand limit and then we find right hand limit. Limit x tends to 1 minus fx, means value of x is nearer to 1 but less than 1, then function is given by x plus 2. Limit x tends to 1 minus fx as x plus 2. Now we put limit, then we put x equal to 1, then 1 plus 2 equal to 3. Here we have to find left hand limit, which is 3. Now we find right hand limit, that means limit x tends to 1 plus fx. Here value of x is nearer to 1 but greater than 1, and if x is greater than 1 then function is x minus 2. Now we put limit, then we put x equal to 1, then 1 minus 2 equal to minus 1. Here left hand limit is 3 and right hand limit is minus 1. Both are not same. Okay, both are not same. Then right hand limit not equal to left hand limit. Then that means limit of function does not exist. That means function is discontinuous. Okay, function अगर continuous है तो उसकी पहली कंडीशन क्या है? उसकी पहली कंडीशन है उसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट विच पॉइंट x इक्वल टू 1. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट हो गए. अब हम लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12. बहुत ही इजी है. डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय इफ x लेस देन 0 देन फंक्शन इज x प्लस 2, इफ x ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज माइनस x प्लस 2. ओके, तो यहाँ पे फंक्शन दिया गया हुआ है, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमको बात करनी है. तो कंटिन्यूटी कौन से पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे दिया गया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे ऑन आर. ओके, एट एवरी रियल नंबर. फर्स्ट इफ x लेस देन 0, if x less than 0 then function is given by unique function, that is x plus 2. Then here we have to find only two things, which is f of c and limit. First we have to find, suppose here first we assume that x equal to c and c is less than 0 and c is any real number which is less than 0, that means c is negative real number. That now first f of c, fx equal to x plus 2, put x equal to c, then f of c equal to c plus 2. Now we find limit x tends to c fx, but fx is unique function, that is x plus 2, means limit x tends to c x plus 2. Now we apply limit, that means we put x equal to c, then here c plus 2, here f of c plus 2, and limit is also c plus 2, both are equal, then fx is continuous at x less than 0. Similarly for x greater than 0, fx equal to minus x plus 2, which is unique function. Okay, यहाँ से मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ. यहाँ पे आप फर्स्ट क्या करोगे, एज्यूम करोगे सपोज x इक्वल टू k and k is greater than 0, k belongs to R, that means k is पॉजिटिव रियल नंबर. तो यहाँ पे भी आपको दो चीज फाइंड करनी है, एक तो f of k और उसका लिमिट, दोनों सेम ही आएगा. तो यहाँ पे फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा. ओके, एट x ग्रेटर देन 0. अब हम सोचेंगे कि x इक्वल टू 0 के बारे में क्या है.
तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया हुआ है वो दिया है x लेस देन 0, मतलब x नेगेटिव है तो फंक्शन, x पॉजिटिव है तो भी फंक्शन है, लेकिन x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 तो फंक्शन कुछ डिफाइन किया गया हुआ नहीं है, मतलब कि 0 के बारे में हमको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 के सामने फंक्शन कुछ भी डिफाइन किया गया हुआ नहीं है। ओके, आगे सम लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ fx is given by if x greater than or equal to 0 then function is x, if x less than 0 then function is x square. First for x equal to 0, then here f of 0 means value of x is exact 0, then function is 0. Now we find right hand limit and left hand limit. First left hand limit, that is limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 minus, but function is given by if x less than 0 then function is given by x square. Now we put limit, that means we put x equal to 0 means 0 square gives 0, then left hand limit is given by 0. Now we find right hand limit, limit x tends to 0 plus fx equal to limit x tends to 0 plus, what means of 0 plus, value of x is nearer to 0 but greater than 0, and if x greater than 0 then function is given by x, then here we put x fx equal to x. Now we apply limit, that means we put x equal to 0 means answer is 0, f of 0 0, left hand limit is 0, right hand limit is also 0, so f of 0 equal to this equal to left hand limit equal to right hand limit, then function is continuous at x equal to 0. If x greater, now we discuss about if x is positive real number then what. If x is positive real number, that means x is greater than 0, then here unit function is given by fx equal to x. तो यहाँ से आपको काम करना है, तो यहाँ से फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगला सम लिया है उसी तरह से होगा, और फिर तीसरा केस आएगा if x less than 0 then x less than 0 then unit function is given by fx equal to x square. तो यहाँ पे भी ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. ओके, दैट मींस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा फॉर एवरी नेगेटिव रियल नंबर, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर. ओके, तो ये सब बहुत ही इजी है. इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं ही पूछेगा. देखते हैं क्या है वो स्टेटमेंट, खास याद रखो, सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. यहाँ का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड बाय, वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 up to last term is 0. Suppose we take some point that is x equal to c and c is any real number. Okay, then here find only two things. One is f of c and second thing is limit. And first f of c, then put here x equal to c, then an c raised to n plus an minus 1 c raised to n minus 1 up to last term is a 0. Now we find the limit, that is limit x tends to c fx equal to limit x tends to c, but function is given by an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus a0, which is polynomial function. Now we apply limit, that means we put x equal to c here, then an c raised to n plus an minus 1 c raised to n plus up to last term is a0. Here a0 a1 up to an, which is constant term. Then f of c equal to same limit, both are same, then fx is continuous on r or fx is continuous at every real number. But here fx is given by polynomial function, then we prove that every polynomial function is always continuous at every real number. Okay, ये सब बहुत ही इजी है. इसका स्टेटमेंट खास आपको याद रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. ओके, अब हम आगे थोड़ा सम लेते हैं. Now we take next illustration, which is illustration number 15. यहाँ पे भी इसका स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसकी जो प्रूफ है वो एग्जाम में पूछे जाने वाली नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट बहुत ही मस्त है. फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन x.
तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन एक्स वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा वो हमको फाइंड करना है। तो मैं पहले 11th की बात कर लेता हूँ। 11th में ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन। ओके, हियर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन एक्स। अगर x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में है और x इक्वल टू -2 है तो इसका आंसर आएगा -2। शायद ये सब आपको पता ही होगा। इफ x इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0 देन आंसर ऑफ फंक्शन इज -1। इफ 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1 देन आंसर इज 0। 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 देन आंसर इज 1। 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3 देन आंसर इज 2। तो ये सब आपको पता है। इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे y। ओके, सी हियर -2 टू -1, x की वैल्यू अगर -2 और -1 के बीच में है तो इसका आंसर आएगा -2 टू -1, तो इसका आंसर है -2। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। ये देखो यहाँ पे -1 के आगे मैंने होल पॉइंट किया है, यहाँ पे डार्क पॉइंट। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 ले सकते हैं। अब यहाँ पे x इक्वल टू -1 नहीं है तो यहाँ पे x यहाँ पे होल पॉइंट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच और -1 है तो फंक्शन का आंसर है -1। ओके, तो यहाँ पे 0 के आगे भी मैंने होलो पॉइंट किया है, यहाँ पे -1 के आगे डार्क पॉइंट किया है, तो यह हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 2 या 3 है तो यहाँ पे ग्राफ हमारा ब्रेक होता है। ठीक है, ग्राफ हमारा ब्रेक होता है। लेकिन यहाँ पे 1.2 सपोज हम x की वैल्यू 1.2 लेते हैं तो 1.2 यहाँ पे, तो ग्राफ यहाँ पे कंटिन्यूअस है। ओके, 2.3 लेते हैं तो यहाँ पे भी ग्राफ कंटिन्यूअस है। 0.7 लेते हैं तो यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूअस है। मतलब कि अगर पॉइंट x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो फंक्शन का मतलब उसका ग्राफ जो है वो ब्रेक होता है। मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट विच पॉइंट, एट एवरी इंटीजर पॉइंट और एवरी इंटीग्रल पॉइंट। ओके, तो यहां से ग्राफ पे सी हमको पता चल जाता है कि फंक्शन है जो कि अगर x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर x की वैल्यू इंटीजर है मतलब कि 1 2 3 या वगैरह होगी तो ग्राफ यहाँ पे ब्रेक होता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हमको डिसकंटिन्यू डिफाइन करनी है, कौन से पॉइंट के आगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं बात करता हूँ, अगर x की वैल्यू 0 से 1 और 0 है तो उसका लिस्ट वैल्यू क्या है 0, वो आंसर आएगा। 1 से 2 है तो आंसर 1 आएगा। x की वैल्यू 2 to 3 देन आंसर इज 2। अगर x की वैल्यू 50 से 51 के बीच में और 50 है तो आंसर आएगा 50। इसी तरह से x की वैल्यू अगर n-1 से n है और n-1 जितनी भी हो तो आंसर आएगा n-1। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर x की वैल्यू n-1 to n है, ओके, तो आंसर आएगा n-1। अगर x की वैल्यू n to n+1 है तो आंसर आएगा n। अगर x की वैल्यू n+1 to n+2 है तो आंसर आएगा n+1। ओके, तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे, सपोज x इक्वल टू c एंड c इज एनी रियल नंबर एंड c इज नॉट एन इंटीजर। ओके, c इंटीजर नहीं है यहाँ पे, तो पहले हम फाइंड करेंगे f ऑफ c। f ऑफ c मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन c मींस बॉक्स c। अगर c की वैल्यू 1.2 है तो यहाँ पे 1.2 आएगा जो कि आंसर आएगा 1। और बाद में फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c बॉक्स x। नाउ वी अप्लाई लिमिट देन बॉक्स c। ओके, अगर यहाँ पे c की वैल्यू 1.2 है तो x टेंड्स टू 1.2, दैट मींस वैल्यू ऑफ x इज नियरर टू 1.2। ओके, नियरर टू 1.2 मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1.19 समथिंग और 1.2001 समथिंग, तो बॉक्स में वो वैल्यू आएगी तो भी इसका आंसर क्या रहेगा 1। मतलब दोनों का आंसर सेम ही आएगा अगर x इंटीजर नहीं है तो। ओके, तो f of c is equal to limit x tends to c f of c, then f(x) is continuous and all real number not equal to integer।
तो इंटीजर अगर नहीं है x की वैल्यू तो फंक्शन ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। ये ग्राफ से भी हमने देख लिया। अगर x की वैल्यू इंटीजर है, देख लेते हैं, सपोज x इक्वल टू k बिलोंग्स टू r एंड k इज सम इंटीजर, देन फंक्शन फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन फंक्शन fx इक्वल टू बॉक्स x। अगर x की वैल्यू k-1 और k के बीच में है तो आंसर आएगा लीस्ट वैल्यू, दैट इज k-1। और अगर x की वैल्यू k और k+1 के बीच में है तो इसकी आंसर आएगा लीस्ट वैल्यू, दैट इज k। नाउ वी फाइंड राइट हैंड लिमिट एंड देन राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू k - fx। लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू k-, that means value of x is nearer to k but less than k। अगर x की वैल्यू k से कम है तो फंक्शन का आंसर आएगा k-1। तो यहां पे आंसर हमारा मिल गया k-1। नाउ वी फाइंड राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू k plus fx। लिमिट x टेंड्स टू k plus fx as box x टेंड्स टू k plus, मतलब x की वैल्यू k से एकदम नजदीक आएगी लेकिन k से ज्यादा है, मतलब x is nearer to k but greater than k। if x is greater than k then function is given by k and k is constant, and here answer is k। left hand limit is k-1, right hand limit is k। ओके, तो दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू k - fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k plus fx, then function is discontinuous at every integral point। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, खास याद रखो, अगर fx इक्वल टू बॉक्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन दिया गया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन कौन से पॉइंट क्या है, तो फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट, मतलब कि x इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्राफ में भी देखा है 1 के आगे फंक्शन ब्रेक होता है, 2, 3 सब के आगे फंक्शन क्या है, ब्रेक होता है। अगर 1.2 की बात करें तो वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1.3 की बात करें कंटिन्यूअस है, 0.5 -1.5 ये सब पॉइंट के आगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका स्टेटमेंट खास याद रखो, fx इक्वल टू बॉक्स x इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल नंबर। ओके, नेक्स्ट वो है थियरी, बहुत ही इजी थियरी है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर दो फंक्शन दिए गए हो f एंड g, दो फंक्शन दिए हैं और दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे, रियल नंबर c के आगे दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, f एंड g आर गिवन फंक्शन एंड बोथ फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट रियल नंबर c। अगर दोनों फंक्शन c के आगे कंटिन्यूअस है तो दैट मींस f plus g is also continuous at x equal to c। अगर f and g दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओके, r के ऊपर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, then we say that f plus g is also continuous at every real number। same f minus g is also continuous at x equal to c। okay, summation is continuous, subtraction is continuous, multiplication is also continuous, that means f into g is also continuous at x equal to c, and division, that means f divided by g is also continuous at x equal to c, and here condition is g of c is not equal to 0। मतलब यहाँ पे f and g दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू c, तो इसका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा फॉर सेम पॉइंट, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस है फॉर सेम पॉइंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हमको दिया गया हुआ है f and g both are continuous at every real number, f and g is continuous, f and g are continuous at every real number, that means f plus g addition of two function is also continuous at every real number, subtraction is also continuous at every real number, same for multiplication and division are also continuous at every real number। ओके, आज हम यहाँ तक रखते हैं, बहुत ही इजी सम था, स्टेटमेंट खास याद रखिएगा। ओके।